करके हाथ लगाओ। Respected Mr. Jay Prakash Singh, our guest speaker, Mr. Anmol, our companion, respected sisters, teachers, and my dear friends. Today I am very happy to introduce about Mr. Jay Prakash Singh. You might have heard in the introduction Suman ma'am was reading. Mr. Jay Prakash Singh is doing a kind of a beautiful and challenging ministry. You know, when I was reading the message what he has sent me in my WhatsApp, I was really taken up the way he had that initiative. He has a vision to help the society. He has only one vision to help the society, is to help all of us to get saved from cyber crimes. And further, he has almost addressed 1,000 seminars for the graduates. Please put your hands together for Mr. More than 1,000 seminars he has addressed the students and the graduates. And today, he is with us. And I am sure the input session that we had, it was really practical and it was very interactive. He was nicely interacting with all of you, and the way he was putting out the things really very practical way. And in a way, all of us have become one way or the other, we have become victims of the cyber crimes. Even I myself have become victim. So today it is to generate a kind of awareness for all of us and to be saved from all these filthy glitches. Today he has come over here. So I take this opportunity to thank Mr. Jay Prakash Singh on behalf of St. Mary's family for coming over here for enlightening the young minds. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Please be answered.
And I am sure, I believe that this session is not only a theoretical session, but it is a practical session. I am sure this session will help us in our day-to-day life to be aware, to be careful in our day-to-day dealings. I also thank Mr. Anmol for his visit here. He has come along with Jaiprakash Singh, sir. He has also been involved in all these things. Sir also has got a very good experience. So thank you so much, sir, for coming over here. Please put your hands together for Anmol, sir. My dear children, I am so happy to see all of you. You are so active in listening to sir. You are so active in responding to him, and the way you are answering certain things we ourselves did not know. The way sir was putting questions to you, and you were nicely answering, even though you are class 5, 6, class 7, 8, but the knowledge that you have got is really mesmerizing. Please don't use the knowledge for the bad cause. Use the cyber knowledge for the good cause. Please be aware of everything. Please be careful. As Miss Vishu Sukla has rightly said, cyber security is our responsibility. Please repeat after me. Cyber security is our responsibility. Once again, cyber security is our responsibility. Cyber security is our responsibility. Did you learn something? Are you sure? Yes. I'll ask just two of you. You tell me your experience from the boys side. One boy just come. I just want to know your thoughts. आपको कैसा लगा? Any of you? This boy, one is sitting in the first row. Yes. This boy, not this one. Yes, this one. Small one. Yes. Come here. Come here. What is your name? I think he was found very active in answering, no? Yes. कैसा लगा आपको ये सब? अच्छा नहीं. When you are listening to sir, how did you feel? Did you feel good? Yes. Sure. Very sure. I feel that the way sir was asking, he was answering everything. I was just sitting there and I was looking at him. The way sir was asking, he was answering everything. I was thinking how this boy knows all these things. All the terms that sir was asking, he was able to answer most of them. Most of them. Very good, very good. Anybody from girls side? Anybody? You want to share anything? How do you feel? Yeah, you have got a head girl. Jessica, please come here. Jessica was sitting and enjoying there, but I don't know how far she has enjoyed. Can you just tell me how do you feel? How did you feel? अच्छा लगा और सर ने हम लोग को इतना सब कुछ बताया कि कैसे हम लोग को सेफ रहना चाहिए और कैसे हम लोग को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए. एक बार तो हो गया बट अवेयर रहना चाहिए इन सब मैसेज से, कॉल से और बहुत अच्छा लगा. Very good, very good. तो मतलब हम अपना प्राइवेट नेटवर्क को करके जो वो है वो भी चीजें कर सकते हैं. इंडियन लीगल इंटरनेट भी हमारे जैसे बैंक होता है, हमारा पुलिस स्टेशन पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है सारे VPN पे चलते हैं. तो ऐसे मैंने बताया ना कि VPN आप किस पर्पस से यूज करें डिपेंड करता है. कॉमन पीपल के लिए लीगल है, लेकिन बहुत सारे जो स्कैमर हैं उन्होंने खुद का अपना VPN सर्वर बना रखा है ताकि जब आप उनके सर्वर के माध्यम से जाएंगे तो आपका डेटा बैक कर सकें. लोगों को लगता है कि हम VPN पे जाएंगे हम सेफ है, सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं होता. बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारा बैंकों का VPN है
वो सिक्योर सर्वर से होकर गुजरता है। लेकिन आप पब्लिक हैं, पब्लिक VPN यूज कर रहे हैं, तो आपके जो उनके सर्वर से डेटा उतर के जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब वो जो हमें लगता है कि हमारी पहचान छुप रही है, वो एक्चुअल में होती नहीं है। नेक्स्ट। सर पता कैसे चलेगा कि हमारा फोन है क्या? आपके फोन में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगेगी कि आपको कुछ लगने लगेगा, या तो फोन हीट होने लगेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि फोन के यूजेस बढ़ जाएंगे। तो सिंपल सा पहला ये होता है कि फोन हीट होने लगेगा, ऑटोमेटिक फोन रखा हुआ, साइलेंट फोन रखा हुआ, फोन हीट होने लगेगा, डेटा ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगेगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन हैक हो गया है। और सर हैक को हटाने कैसे? उसको फोन को रीसेट करना पड़ेगा, फोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, हैक हो जाएगा, उसका कोड डिलीट हो जाएगा, फोन थैंक यू। सर इसमें जैसे हम सामान ऑर्डर करें तो पैसा ऑनलाइन पहले ही दे दें, पर बाद में सामान आए तो पैसा भी नहीं मिलता और बाकी सामान भी इसमें क्या करें? उसमें फिर आपको 19 पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, आपकी साइट ऑफ crime.gov.in पे कंप्लेंट फाइल रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार फादर के नाम से फेक आईडी बनी थी। हाँ, मेरी टीके से उसने फोटो मांगी थी, वो किस दिन में मांगी थी? पता चला है कि कैसे होती है। कितने लोगों ने जेपी सर की अच्छी सी बातें सुनी? सभी लोगों ने सुनी ना? घर वालों को बताएंगे सब चीजें? सही बताइए, आपके मम्मी पापा, आप लोगों के पास कोई मोबाइल नहीं होगा, आपके मम्मी पापा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते होंगे ना? लगभग सबके आज के समय लगभग सबके मम्मी पापा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते होंगे। तो जैसे देखिए, आपका अगर कोई फोन हैक कर लेता है किसी का भी, तो वो मतलब आप लोग सुरक्षित कैसे रहें, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग सुरक्षित कैसे रहें, आपका कोई व्हाट्सएप हैक ना कर पाए। अगर कोई आपका व्हाट्सएप हैक कर लेगा तो दूसरों को आपको व्हाट्सएप देगा, उसके बाद आपको उसमें डालने पड़ेंगे पहले, उसके बाद आपको खेलना पड़ेगा कि किसी ने पेमेंट करा, हमको सिखा रहा है कि पेमेंट हो गया, बट वो स्प्रेड एक्सपेंस हो रहा है, पेमेंट आता भी नहीं है अकाउंट में। जैसे बड़ी शॉप है, मान लीजिए कस्टमर ने पेमेंट किया तो उनका तो दिखा दिया 800 रुपीज पेड है, बट वो हमारे अकाउंट में स्प्रेड एक्सपेंस 400 दिखा रहा है, बट वो पेमेंट आया नहीं। तो शायद उसने QR कोड स्कैन सही से नहीं किया होगा, आपको एक स्कैन नंबर से उसने पे किया था, QR कोड से नहीं किया था। कोई से भी नंबर से भी किया हो, तो जो आपको उसने स्क्रीनशॉट दिया हो, हो सकता है उसने फेक स्क्रीनशॉट दिया हो। ये स्प्रेड एक्सपेंस है क्या? हो सकता स्प्लिट एक्सपेंस की हम जो पैसा कहीं खरीदारी कर रहे हैं, तो हमने पैसा पेमेंट किया, तो वो लोगों से जोड़ लिया जाए। स्प्लिट एक्सपेंस का मतलब है कि QR कोड से जो पेमेंट करते हैं, मैं देख रहा था एक बच्चा कर रहा था, हाल ही की बात बता रहा हूँ, जो QR कोड किया वो वहाँ बोल भी रहा है 10 रुपीज पे, मगर उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं गया। ये कैसे बोला? वो QR कोड एक स्कैन ऐप आता है जिसमें जनरेट हो जाता है, इसमें आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। सामने वाले का मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में फोन पे जिस भी ऐप से क्या लड़के ने कई सारे टेम्पल पे जाके अपना QR कोड डाल दिया था, ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास शॉप पर अपना QR कोड है, एवरी टाइम चेक करते रहो कि कोई दूसरा तो उसका गलत ढंग से यूज नहीं कर रहा है, उसने अपना QR कोड तो आपके उस पर नहीं लगा दिया, तब इस कारण से ही पेमेंट की। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान ऑर्डर करता है, वो हम तक पहुंचता ही नहीं है, तब क्या करेंगे? अमेज़न और जो फ्लिपकार्ट है, अगर आप सही वेबसाइट पे गए हैं, सही ऐप से खरीदारी किए हैं, डाल दीजिए तो आपकी फिर हम रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन पैसे डालने के बाद